बांग्लादेशी मुर्दाबाद 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 बांग्लादेशी होशियार 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 बांग्लादेश गवर्नमेंट होशियार 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 बांग्लादेशी मुर्दाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय बांग्लादेशी मुर्दाबाद 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 बांग्लादेशी मुर्दाबाद 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 सब खान हाय 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 मोहम्मद इनुस खान हाय 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 मोहम्मद इनुस खान हाय 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 जहादी मोहम्मद इनुस खान होशियार होशियार जहादी होशियार 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 जहादी होशियार 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 हिंदू दोस्त का जिंदाबाद 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 हिंदू दोस्त का जिंदाबाद 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 HOCP long live long live long live HOCP long live long live long live भारत माता की भारत माता की जय आयको जय आयको हिंदू युवा छात्र परिषद जिंदाबाद 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 हिंदू युवा छात्र परिषद जिंदाबाद 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 प्रदर्शन क्या है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो निरंतर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है, जिसका जीता जागता सबूत आज कुछ दिनों पहले दीपू चंद्र दास का जो पुलिस कस्टडी से निकाल के पुलिस ने खुद उन्हें उन दरिंदों के हवाले किया और जो कट्टरपंथी जो जिहादी हैं उन लोगों के हवाले करने के पश्चात जो उनका निर्मम और बर्बर तरीके से हत्याकांड करने के पश्चात उन्हें बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। इस कांड को हम लोग तीव्र भाषा में गरियाना देते हुए बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हैं और इस प्रकार का घटना कहीं भी हो रहा है, चाहे भारतवर्ष के अंदर हो, बांग्लादेश विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो इसी प्रकार का विरोध हम लोग करेंगे और आगे उन लोग को यही चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को करने से वो लोग बात आए ताकि और अन्यथा नहीं तो परिणाम और भी भयावह होगा। हम लोग भी इसी प्रकार का कट्टरता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। কি ক'ব এইটো যোনটো মানে ইমান দুখৰ খবৰ এটা মানে আপোনাৰ বাংলাদেশৰ হিন্দু ল'ৰাক বা হিন্দু হওক মুছলিম হওক যি জাতি হওক এটা মানুহ এনেকুৱাকৈ মাৰিব হত্যা কৰিব লাগে নেকি? আজি এইটো আমাৰ নতুন নহয়, বহুত 71 পিছৰ পৰা এইটো চলি আহিছে, ঠিক আছে। তো যোৱা দিনত যি ঘটনাটো হৈছে এইটো তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ কথা। ইয়াৰ পক্ষতে যি মহম্মদ ইউছুফ আছে তেওঁৰ মন্তব্য আজি সি গৈ মাফি দেখা খুজিলে, কিয়নো ভাৰতৰ পৰা চাউল নাযায় বুলি, ঠিক আছে ন। তো সেইটো লৈ পিনে আমাৰ কোনো হেৰি নাই, মাৰিছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমতে যিমান বাংলাদেশী মিয়া আছে চবকে আমি আমাৰ বেনাৰৰ থ্ৰুদি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যদি এনেকুৱা কিবা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া আমি মুছলিম বাংলাদেশী যিবিলাক আমাৰ অসমত আছে বসবাস কৰি আছে তেখেতক আমি নিজে আইনগতভাৱে ধৰিম। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আইনী জগৰীয়া হ'ব। ইয়াতে বহুত মানুহ আছে চাই আছে, ইয়াতে আপোনাৰ হিন্দু যুৱ পৰিষদ ছাত্ৰ পৰিষদ যোনটো আছে তেখেতে এইটো প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। ইয়াতে আমাৰ লগত শংকৰদা কি ক'ব? নমস্কাৰ, মই এইটো তিৰুভাষা চৰকাৰক শিকাই দিছোঁ যে এই বস্তুৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব লাগে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনটো ইছ্যু হয় তাৰ ওপৰত মাত মাতিব লাগে আৰু যোনটো বাংলাদেশত যি ঘটনা হৈ আছে এইটো ক্ষেত্ৰত হ'ব নালাগে, আমি বৰ্দাস্ত নকৰিম আৰু এইটো কাৰণে জাহাজ পাতে ওলাই আহিমগৈ। বাৰে বাৰে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলিব। সকলোকে আমি সকীয়াই দিছোঁ বাংলাদেশত আৰু ইয়াত থকা যিমান হিন্দু বাংলাদেশী মুছলিম বাংলাদেশী আছে সকলোকে ৱাৰ্ণিং দিছোঁ আমি। কিন্তু এই বগাত যদি এবাৰ হয় তো আমি সকলো চব আগবাঢ়ি আহিম, সকলো জনতা আগবাঢ়ি আহিম আৰু এইটোক সকীয়াই দিছোঁ বাৰে বাৰে। এইটো হ'ব নালাগে, বহুত বেয়া হৈছে আমাৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি বৰ্দাস্ত নকৰিম। থেংক ইউ। আমাৰ ওচৰত আমাৰ মহিলা পৰিষদো আছে, হিন্দু যুৱ পৰিষদো। কি ক'ব বাইদেউ আপুনি? এইটো এনেকুৱা এটা হত্যাকাণ্ড এটা হৈছে, হত্যাকাণ্ড যিটো হৈছে বাংলাদেশত আমাৰ হিন্দু মানুহ, কি ক'ব বাইদেউ আপোনাৰ? ইয়াতে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাংলাদেশৰ আৰক্ষীলৈ সাধাৰণ এটা কথা লৈ যিভাৱে আমাৰ হিন্দু ল'ৰাটোক অত্যাচাৰ কৰিলে এইটো দুনাই হ'ব নালাগে। সিহঁতে ক'ত অধিকাৰ পালে আমাৰ হিন্দু ল'ৰাটোক এইভাৱে জ্বলাই কিনে মাৰিবলৈ কাৰণে? সিহঁতৰ মৌলানাত কি এনেকৈ লিখা আছে নেকি হিন্দু ল'ৰাক এনেকৈ জ্বলাই কিনে? সিহঁতে যদি জ্বলাব পাৰে আমি সিহঁতক জ্বলাবলৈ আমাৰো অধিকাৰ আছে।
কিন্তু আৰু এটা কথা আছে মানে এজন ল'ৰা থানাৰ পৰা ওলাই আৰক্ষীৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব? বাংলাদেশী আৰক্ষী তেখেতে এটা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয়, তেখেতে এটা থানাৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন কেনেকুৱা পাইছে? বাংলাদেশ আৰক্ষীয়ে বহুত ভুল কৰিছে। বাংলাদেশ আৰক্ষীয়ে হিন্দু ল'ৰা এটাক কেনেকে মাৰিবৰ কাৰণে এই দুৰ্বৃত্তৰ হাতত এৰি দিলে, বাংলাদেশী মিয়া মুছলিমখিনি হাতত এৰি দিলে আমাৰ হিন্দু ল'ৰাটোক মাৰিবৰ কাৰণে। এইটো আইন ক'ত পালে? ডিপু দাসক যে ইমান অন্যায়ভাৱে মাৰিলে, জীয়াই গছত বান্ধি জুই লগাই দিলে, এইটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আইনমতে চৰকাৰে বিচাৰ কৰক, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু দোষীক অতি শীঘ্ৰে শাস্তি দিব লাগে, যাতে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা বাংলাদেশত থকা হিন্দুসকলৰ ওপৰত এনেদৰে অত্যাচাৰ হ'ব নালাগে। চাই আছে ইয়াতে কেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰি আছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম, মহিলা সমিতি আছে, তাতে দল সংগঠন গোটেই আছে। इसका परिणाम और भी बहुत तीव्रतर होगा और बहुत ही भयानक होगा, इसका हम लोग चेतावनी देते हैं। साथ ही जो बांग्लादेश एम्बेसी जो भारतवर्ष में चल रही है, मैं वहाँ के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि उस एम्बेसी को बंद करवाने में समाचार माध्यमों के जरिए कुछ दिनों पहले ये जानने को मिला, देखने को मिला कि बांग्लादेश में एक निरीह हिंदू युवक की कुछ कट्टरपंथी जिहादियों ने पुलिस कस्टडी से निकाल के, या यूं कहें कि पुलिस ने खुद उस निरीह व्यक्ति को, दीपू चंद्र दास को भीड़ के हवाले किया, उन भेड़ियों के हवाले किया और उन्होंने उसे मारपीट करने के बाद चौराहे पे फांसी लगा के जिंदा जला दिया। इस प्रकार एक हिंदू व्यक्ति के ऊपर जो अत्याचार हुआ है बांग्लादेश में, संपूर्ण भारत स्तब्ध रह गया है इस चीज के लिए। और आज हमारे देश के जो भी धर्म प्रेमी जो भी लोग हैं, हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं, आज अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन किंचित इसमें संशय ये है कि आज बांग्लादेश से हुंकार भरता है कोई भी जिहादी कट्टरपंथी कि नॉर्थ ईस्ट को, सेवन सिस्टर को काट के अलग कर देंगे, भारतवर्ष का अंश से उन्हें अलग कर देंगे। ये उनका साहस कैसे हो सकता है? ये साहस इसीलिए वे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की जो मानसिक स्थिति है, मानसिक पारदर्शिता है, वो एकदम शून्य हो चुकी है। क्योंकि हम लोग आपस में इतने उलझे हुए हैं कि कोई भी विदेशी ताकत आज इस प्रकार का घटना को अंजाम देने के लिए एक हुंकार भरती है, और वो ऐसा हुंकार इसलिए भरती है क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे पहले हमें आपसी भाईचारा को मजबूत करते हुए, आपसी धर्म को बचाते हुए, आपस में सभी को मिलजुल करके एक सुदृढ़ राज्य, सुदृढ़ देश की स्थापना के स्वार्थ के हित में आज हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग छोटे छोटे जाति जनगोष्ठी में डिवाइड है, जिसका कारण आज विदेशी ताकत कहीं से भी हुंकार भरता है कि आज हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। इतना साहस उनमें है ही नहीं। खाने के लिए तरसते हैं तो भारत उनका भरण पोषण करता है, लेकिन इतना क्रूरता पूर्वक जो भी संज्ञान देते हैं, सामाजिक माध्यम में हो या समाचार माध्यम में हो, वो इसलिए करते हैं कि हम लोग एकजुट नहीं है। ये हम सभी को एकजुट होने के लिए एक मैसेज देते हैं वो लोग, और जो उनका हुंकार आता है वो एक चेतावनी स्वरूप हम लोग लें। और आज हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में बांग्लादेशी लोग हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, और अगर सही प्रॉपर तरीका से अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो वो बांग्लादेशी ही निकलेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। आइए हम लोग मिलके थोड़े से लोभ और पैसा को बचाने के उद्देश्य से जो हम लोग बाहरी दुश्मनों को अपने घरों में शरण देके उनका भरण पोषण करके आज हम लोग उस देश की अर्थनीति को मजबूत करते हुए अपने देश को खोखला कर रहे हैं, और हमारा जो देश निरंतर खोखला हो जा रहा है, वो लोग दीमक है, दीमक की तरह में चाट चाट के हमारे देश को खोखला कर दिए हुए, और हम लोग आज उनका भरण पोषण कर रहे हैं। लानत है हम जैसे लोगों पे जो कुछ पैसों को बचाने के लिए आज दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए अपने देश को खोखला होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हमारा हिंदू युवा छात्र परिषद के साथ साथ जितने भी जागरूक व्यक्ति है, जागरूक सनातनी हिंदू नागरिक है या जागरूक देश प्रेमी व्यक्ति है, उन सभी से मैं आह्वान करूंगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में अगर इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखता है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, आप सरकार की मदद कीजिए, प्रशासन की मदद कीजिए, तब जाके आपका जिला सुरक्षित रहेगा, आपका राज्य सुरक्षित रहेगा, आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। अन्यथा वैसे जिहादी मानसिकता वाले कुछ टुटपुंजिए लोग जिनका खाने को औकात नहीं है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे देशों के ऊपर आश्रित है, आज भी इस प्रकार का हुंकार भरते कि नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए भी ये एक तमाचा है, क्योंकि अभी
जो खेरनी में, कार्बी आंगलंग में जो घटना घटा है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आज एक भाई का दुश्मन बना हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते हुए अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। थोड़े थोड़े जो लोभ लालसा है, जो लालच है, उसको विरत रख के आज हमें सुदृढ़ देश का निर्माण में अभी सभी संकल्प लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संपूर्ण भारत के व्यक्तियों से आह्वान करता हूँ कि जो बांग्लादेशी दिमाग जो पूरे देश को खोखला कर रहे हैं, उन्हें आइए, पहचानिए और उन्हें सही सबक सिखाते हुए सही मायनों में शांति तरीके से उन्हें उनके घर तक पहुंचाए। अन्यथा आपका ही देश खराब हो रहा है, हमारे बाल बच्चों का क्या भविष्य मिलेगा, ये आप अपने आप से पूछेगा। इसलिए थोड़े से पैसों की बचत के लिए आप बाहरी दुश्मनों को अपने घर में आश्रय मत दीजिए, यही आह्वान है। जय हिंद।